So we were talking about semantic tags, and we were talking about um, what all various data types are available in the HTML5, right? So semantic tags are nothing but which gives extra meaning to the text. तो code का readability जो बढ़ाता है, those tags are called as semantic tags, and in that we have seen article, section, main, header, footer, aside. Then we also have discussed about H1, H2, H3. These are also semantic tags. So these semantic tags we have seen. Now in HTML5, what all other tags have got added in the HTML5? So those are nothing but canvas, audio, video tags have got added. So those are called as media tags. So media tags are which one? Audio and video. These are called as media tags. तो अभी अगर हमें मीडिया टैग्स देखने हैं, so you can use here media tags demo.html. अभी मीडिया टैग्स कौन से हैं? So media tags are one of the media tag which is available is audio. So in olden days when HTML5 was not there, we were required to use certain other softwares for storing the for running these medias, like audio clip अगर run करना है तो we were required to use some different softwares, कुछ अलग plugins use करने पड़ते थे. बट अभी अगर हमें कोई ऑडियो क्लिप HTML में रन करनी है तो we can directly use audio tag. And over here we can use audio, and inside this audio itself you can write src is equal to, and here you can specify which src you want to run. So let me get some. So suppose here I am creating one folder called as audio. Inside HTML demos, we will create a folder by name audio. Somebody's mic is on. And inside this folder, suppose I am storing this audio clip. Okay, so some audio clip we are pasting over here. Similarly, over here some video clip is also available. So here I am pasting that video clip also. So suppose ये audio अगर हमें play करना है, ये वाला जो है वो हमें play करना है. So how you will run it in the browser? So I'm copy pasting this entire file which we want to run. So let's check कि क्या है उसमें. So now here if I want to show this audio clip, तो यहाँ पे हमें अभी ये फाइल देनी पड़ेगी. Now this HTML file is available in which folder? It is available in HTML demo. और ये जो फाइल है वो कौन से फोल्डर में है? So audio folder में है. So here you will have to give the path कि ये audio फाइल हमें रन करनी है, right? So you can write here src. अभी ये ऑडियो क्लिप के लिए अगर हमें कंट्रोल्स देने हैं कुछ,
तो हम कंट्रोल्स, इधर कंट्रोल्स टैग भी यूज कर सकते हैं। तो पॉज या म्यूट करने का जो कंट्रोल है, दोज कंट्रोल्स विल अपीयर on the screen. So now suppose I am saving this file and if I am running it, so because of controls you can see this mute control is there, ये play control available है, और ये जो कंट्रोल है प्लेबैक स्पीड वगैरह का, ये कंट्रोल्स दिखने चाहिए, तो कंट्रोल्स एट्रीब्यूट यूज करना है। नाउ व्हेन यू प्ले इट विल एग्जीक्यूट द कोड। So it will get executed whenever you are running it. So you can run it, you can pause it as per you want. अगर हमें उसको म्यूट करना है तो म्यूट भी कर सकते हैं। So like that you can use the audio clip. तो अगर हमें कोई ऑडियो क्लिप प्ले करनी है तो आपके पास ये फाइल होना चाहिए। बट मेनी टाइम्स इट हैपन्स दैट ये जो ऑडियो क्लिप है तो सारे ब्राउजर MP3 को सपोर्ट करते ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सो व्हाट इफ देयर इज सम अदर फॉर्मेट, और हमें हमारे पास अगर अलग फॉर्मेट का फाइल रहेगा, तो देन इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस src हियर वी कैन ऐड अ सोर्स टैग। In such cases we can add a source tag, and in source tag we can specify this src. In the source tag we can specify this src tag. और ऐसे ही अगर हमें दूसरा फॉर्मेट देना है, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट अलग दे सकते हैं। एंड देन ओवर हियर वी विल हैव टू ऐड टाइप एट्रीब्यूट, जिसमें हमें लिखना पड़ेगा दैट इट्स ऑडियो ऑफ टाइप MP3, एंड यहाँ पे हमें टाइप लिखना पड़ेगा जो भी रहेगा वो। ऑडियो/ऑक फॉर्मेट। तो अगर हमारे पास ये दूसरा फॉर्मेट भी है तो हम इधर लिख सकते हैं कि ऑक फॉर्मेट भी है। सो ब्राउजर व्हाइल रनिंग विल ट्राई टू रन दिस पर्टिकुलर कोड, दिस पर्टिकुलर फाइल। अगर MP3 सपोर्ट नहीं करता है फिर वो अगला टाइप देखेगा, अगर ये सपोर्ट नहीं करता है तो वो आगे देखेगा। तो ऐसे मल्टीपल फॉर्मेट्स अगर हमारे पास रहेंगे ऑडियो क्लिप के, तो हम सोर्स टैग करके यूज कर सकते हैं। बट अगर एक ही रहेगा तो देन यू कैन यूज द एट्रीब्यूट कॉल्ड एज src। अभी सपोज आपका ब्राउजर ये टैग को सपोर्ट नहीं करता है, तो हियर यू कैन राइट योर ब्राउजर does not support the audio element. Okay, so over here we can use this audio tag like this. अभी जैसे ऑडियो टैग है वैसे ही दूसरा टैग कौन सा है, वैसे ही दूसरा टैग है वीडियो टैग। अभी जैसे ऑडियो टैग हमने यूज किया एग्जैक्टली सेम वे वी कैन यूज वीडियो टैग, ओनली द डिफरेंस इज ओवर हियर यू विल हैव टू यूज वीडियो। वीडियो के भी कंट्रोल्स अगर यूजर को देने हैं तो दे सकते हैं, और वीडियो में भी हम src इज इक्वल टू लिख सकते हैं। नाउ आवर src इज अवेलेबल इन वीडियो फोल्डर, और यहाँ पे हमारे पास ये MP4 अवेलेबल है, तो हम इधर डायरेक्टली src यूज कर सकते हैं। और अलग अलग फॉर्मेट देने हैं तो एग्जैक्टली सेम लाइक दिस यू कैन यूज सोर्स टैग ऑल्सो इनसाइड वीडियो टैग। तो ऐसे दे सकते हो या फिर ऐसे दे सकते हो। So now if I am saving the file and if I am running the file, so you can see that some video is appearing here. अभी ये controls भी दिख रहे हैं। In this you can use controls also. Full screen करना है तो कर सकते हो, escape press किया तो exit होगा, play करना है तो you can play the script also. अगर उसका सिर्फ देखना है और म्यूट करना है तो म्यूट भी कर सकते हो। So depending on your requirement you can use how you want it. So like this you can use the video control or you can use audio control in the page. और उसके लिए हमें टैग कौन सा यूज करना है, तो ऑडियो एंड वीडियो, these are media tags which are available.
these are media tags which are available and you can use them. अभी इसमें और एक ऑप्शन है ऑटो प्ले करके, so you can use that auto play option also. So you can use auto play attribute also in this. तो वो ऑटोमेटिकली जब भी पेज लोड होगा तो रन करना शुरू हो जाएगा. ऐसे बहुत सारे टैग्स है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है. सम ऑफ देम आई एम राइटिंग. सो नाउ इफ यू रिफ्रेश द पेज तो ये ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएगा व्हेन यू आर सेइंग ऑटो प्ले. अगर आपको उसका साइज कम ज्यादा करना है तो फॉर दैट यू विल हैव टू यूज CSS. उसमें आप साइज कम ज्यादा कर सकते हो शिवेंद्र. एक्चुअली कंट्रोल्स से भी होता है, बट कंट्रोल्स निकाला तो वो होगा ही क्योंकि फिर वो ऑटोमेटिकली प्ले होगा. बट कंट्रोल्स से भी एक्चुअली होता है, मतलब इवन इफ आई कीप द कंट्रोल्स इट रन्स ऑटोमेटिकली. सो दिस इज ऑटो प्ले. यस, यहाँ पे भी बफरिंग होगा. अगर आपका वीडियो डाउनलोड करना है तो डेफिनेटली होगा. अगर आपने यूट्यूब वीडियो का अगर लिंक दे दिया तो यूट्यूब से भी वीडियो आप प्ले कर सकते हो. So this is video tag, right? So you can use video tags over here. Um, Now similarly, अगर आपको यहाँ पे YouTube का कोई वीडियो प्ले करना है and if you want to play it in the if you want to play that video in separate frame, तो you remember कल हमने iframe tag देखा था. अभी ये iframe को अगर हमने कुछ width वगैरह दे दिया, अगर आपने कोई हाइट दे दिया, सो इफ यू स्पेसिफाई एनी हाइट एंड विड्थ एंड इसमें अगर हमने SRC यूज किया एंड यहाँ पे अगर हमने कोई यूट्यूब वीडियो का पाथ शेयर किया, सो सम यूट्यूब वीडियो, so if we are running this particular video, if I want to run, okay, so it will run that particular video in the iframe. So I'm saving this. तो कोई YouTube का वीडियो यूज करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. Refuse to connect, it is saying. Okay, let me check why it is happening, but it works. ये पेज अभी क्लोज ही करना पड़ेगा क्योंकि ऑटो प्ले होता रहेगा वो. So if we specify SRC, this video should work. We will check it out later on क्यों नहीं हो रहा है.
उसमें कुछ और देना है। सी यूआरएल आप दे सकते हो ना किसी और जगह का, यूआरएल तो चलता है। Still it is not working. Let me check why it is not working, that YouTube video over here, but it works. But are you getting idea about it, how it is used? नहीं, आई फ्रेम में अगर आपने डाला तो डायरेक्टली एसआरसी में आप यूज कर सकते हो। Okay, I will check why it is not working. It is saying refuse to connect, but it you are allowed to use it. So this is how you can use audio. अभी दूसरा कौन सा सिलेक्ट करेंगे? वीडियो टैग में एसआरसी में डाला है तो चलेगा या नहीं चलेगा, वो वो देखना पड़ेगा। तो प्रोबेबली इट इज HTTPS की वजह से हो रहा है, बट इट्स ओके। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट। तो आई विल फाइंड आउट कि कौन सा वीडियो रन कर होता है एंड देन दैट आई विल शो यू लेटर। बट अगर आई फ्रेम में आपने ऐसे यूट्यूब का वीडियो डाला तो कर सकते हैं। So this is how you can use media tags in the HTML. So I hope everybody has understood these media tags, audio, video, and using iframe you can use even YouTube video also. So now here suppose we want to add a new file. अभी हम क्या देखेंगे, audio video, ये दो facilities तो हमने देखा. So similarly there is one facility called as canvas is also there. और ये canvas में we can draw something via program. तो प्रोग्रामेटिकली अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है तो हम ये कैनवास यूज कर सकते हैं। So basically canvas is nothing but the portion of the portion of the page, if I want to keep as a reserved for drawing purpose, then we can use then we can go for canvas tag. तो canvas tag हम कैसे यूज करेंगे? So for that, suppose here I am writing HTML and in this inside body tag अगर हमने canvas यूज किया and to this canvas if I am giving the ID called as my canvas,
और कुछ विड्थ स्पेसिफाई किया, फिर कुछ हाइट स्पेसिफाई किया, तो नाउ इन कैनवास एट्रीब्यूट यू कैन यूज हाइट विड्थ, और उसमें अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है तो वो ड्रॉ करने के लिए हमें कोड लिखना पड़ता है, जो जावास्क्रिप्ट में हम लिखेंगे। बट इसमें अगर हमें ये पोर्शन, so this is how you can draw the canvas. अभी ये canvas में it is only displaying the portion, it will only display the portion on the page. It will display only the portion in the page जिसमें हम कुछ programmatically draw कर सकते हैं, तो that is nothing but called as canvas. अभी उसमें अगर हमें कोई कलर का ग्रिड दिखाना है तो वो सब कुछ हम दिखा सकते हैं, बट उसके लिए हमें थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का कोड डालना पड़ेगा. Now right now if I'm using this particular code, तो अभी ये हम चेक करेंगे how it runs. So right now if you see nothing is appearing on the screen, क्योंकि वो canvas इधर है but हमें दिख नहीं रहा है, and that is why if you want to show that canvas on your screen, तो यहाँ पे you will have to specify the style is equal to, and you can write here border colon, तो उसको border draw करेगा वो, और इधर हम लिखेंगे 1 pixel solid and suppose red, तो रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा. तो हम यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर सकते हैं. सो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड दिया, एंड नाउ इफ यू सी द पेज, तो यहाँ पे इट इज मार्किंग द पोर्शन विच इज बिहेविंग लाइक अ कैनवास. तो ये कैनवास में अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, बट अगर हमें स्क्रिप्ट यूज करके इधर कुछ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें इसका एक्सेस लेना पड़ेगा, बराबर, ये पोर्शन का एक्सेस लेना पड़ेगा. एंड अगर जावास्क्रिप्ट में हमें ये पोर्शन का एक्सेस लेना है तो हम क्या क्या यूज करके उसका एक्सेस ले सकते हैं, आईडी एट्रीब्यूट, राइट. उसका हम क्या यूज करके एक्सेस ले सकते हैं, आईडी एट्रीब्यूट. नाउ इफ आई वांट टू ऐड द स्क्रिप्ट फॉर ड्राइंग द डेटा, तो ये कैनवस अभी दिख रहा है इधर, इसके नीचे हमें अभी कोड लिखना पड़ेगा टू ड्रॉ समथिंग ऑन इट. तो यहाँ पे अगर हमने स्क्रिप्ट टैग लिखा, नाउ इफ यू वांट टू ऐड एनी जावास्क्रिप्ट कोड यू विल हैव टू ऐड दैट कोड इन स्क्रिप्ट. अभी हम बाकी इधर अदर कोई डिटेल्स नहीं देखेंगे जावास्क्रिप्ट के, सिर्फ ये कैनवस के ड्राइंग के लिए या जियो लोकेशन के लिए या लोकल स्टोरेज यूज करने के लिए फिर हमें कोड लिखना पड़ता है. तो क्या वो कोड है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू. सो अभी ये जो कैनवस टैग है उसमें अगर हमें दिखाना है कुछ, तो वी कैन यूज हियर वेरिएबल c इज इक्वल टू, एंड वी हैव टू राइट हियर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. अभी गेट एलिमेंट बाय आईडी ये जो फंक्शन है डॉक्यूमेंट का, वो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू फाइंड आउट जिसका आईडी हमने यहाँ पे दिया है. तो अभी इसका आईडी क्या है, माई कैनवास है. नाउ इफ आई एम राइटिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये सी जो है उसको एक्सेस मिल जाएगा ये वाले पोर्शन ऑफ द पेज का. नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग, तो उसमें अभी 2D ड्रॉ करना है या 3D ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए हमें वो जो स्क्वायर है उसके अंदर का कंट्रोल चाहिए विच इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट.
एंड इसीलिए अभी हमें करना पड़ेगा c डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट. सो हियर यू विल हैव टू राइट c डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट. और ये कॉन्टेक्स्ट हमें कौन सा चाहिए, 2D चाहिए या 3D चाहिए, वो हमें लिखना है. अगर 3D फिगर ड्रॉ करना है तो 2D, 3D फिगर करना है तो 3D. एंड देन लाइन ड्रॉ करने के लिए जो भी कोड है वो लिखना है. सो नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ द लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 पोजीशन ऑफ दिस कैनवास, तो वी आर राइटिंग ctx डॉट मूव टू, मतलब गो टू द 0 पेज. एंड अभी हमें लाइन ड्रॉ करनी है. सो सपोज हियर आई एम राइटिंग ctx डॉट लाइन टू. तो मूव टू 0 मतलब 0 से शुरू करना है और लाइन टू कहाँ तक भेजना है. सो वी आर राइटिंग हियर 200, 100 तक ये लाइन भेजना है. एवरी लाइन शुड बी एंडिंग विथ सेमीकोलन. So now we are first of all getting the access to this canvas. फिर हमने इधर 2D ले लिया. और फिर हमने लिखा इधर मूव टू. देन वी आर राइटिंग लाइन टू. और अभी ये लाइन टू अगर हमने ड्रॉ किया है तो एक्चुअल लाइन ड्रॉ करने के लिए वी हैव टू यूज ctx डॉट स्ट्रोक. तो ये फंक्शन जो है वो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर लाइन या कोई भी डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये इम्पोर्टेंट है. एंड वंस यू गेट दिस, यहाँ पे आपको कोड ढूंढना पड़ेगा. यहाँ पे आपको कोड ढूंढना पड़ेगा दैट क्या फिगर या क्या पिक्चर आपको उसमें ड्रॉ करना है. तो डिपेंडिंग ऑन ये कैनवस में अगर आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाना है तो यू विल हैव टू डू इट प्रोग्रामेटिकली. सो इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन, सिंपल सा लाइन अगर ड्रॉ करना है तो यू कैन यूज दिस. सो यू कैन सी कि इसमें ये एक लाइन ड्रॉ हुआ है, राइट. तो ऐसे कुछ भी पिक्चर अगर आपको इसमें ड्रॉ करना है तो देन यू विल हैव टू यूज इट लाइक दिस. अभी ऐसे ही अगर हमें सर्कल भी ड्रॉ करना है उसमें, बट ये सब प्रोग्रामेटिकली होता है. तो ये जो प्रोग्राम में हमने लिखा है, these things you should know. Okay, you should know these functions. So अगर हमें लाइन ड्रॉ करना है कहीं पे भी, तो यूजुअली कोई भी लैंग्वेज में फंक्शन यही होता है दैट फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट वहां पे मूव टू लिखते हैं, कहाँ तक ड्रॉ करना है वहां पे लाइन टू लिखते हैं, एंड एक्चुअल लाइन ड्रॉ करने के लिए स्ट्रोक फंक्शन यूज होता है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज how to draw the line. Okay. सिमिलरली अभी कभी भी हमें कोई पिक्चर प्रोग्रामेटिकली ड्रॉ करके कैनवास में मतलब HTML पेज में दिखाना है तो हम ये टैग यूज करते हैं. अभी सबसे पहले वी नीड टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैनवास. तो उसका एक्सेस कैसे मिलेगा? सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. सो आर वी सेइंग कि ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसका आईडी है माई कैनवास. फिर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा सी में. एंड देन वी आर गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, उसका जो अंदर का पार्ट है जहाँ पे हमें ड्राइंग करना है, दैट वी आर टेकिंग ओवर हियर. सो कोई भी ड्राइंग कर सकते हो. वैसे ही इधर अगर हमने लिखा अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए बट ये कमांड्स आपको ढूंढने पड़ेंगे. सपोज हमने लिखा बिगिन पाथ, फिर हमने लिखा ctx डॉट आर्क. और अभी आर्क अगर हमें देना है तो वी विल हैव टू गिव सेंटर पॉइंट क्या है, फिर हमें देना पड़ेगा रेडियस क्या है. so here we are giving the center point, radius and center point. फिर यहाँ पे हमें so you can see that अगर आर्क फंक्शन में हमने x एक्सिस दिया, y एक्सिस दिया विच इज अवर सेंटर पॉइंट, फिर हमने दिया रेडियस, फिर हमें स्टार्ट एंगल देना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करना है. तो स्टार्ट एंगल 0 है. एंड उसके बाद हमें एंड एंगल देना पड़ेगा
सो पूरा रेडियस हमें चाहिए, राइट? सो हियर वी आर राइटिंग 2 into, एंड यहाँ पे यू कैन यूज math.py. तो अगर ऐसे हमने दे दिया, सो दिस इज 2 pi with this particular radius will give you the circle. तो लेट्स सी आता है क्या सर्कल? अभी ये सर्कल ड्रॉ नहीं हो रहा है. सो नाउ हियर आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन टू गिव स्ट्रोक. तो यू कैन सी दैट ये सर्कल आ रहा है. और अगर ये ड्रॉ करते टाइम कहीं पे भी एरर आया, तो इफ यू गो टू F12 एंड इफ यू गो टू कंसोल, तो यहाँ पे हमें एरर मैसेज दिखता है. सो 2D स्टैंड्स फॉर 2 डायमेंशनल. अगर हमें कोई क्यूब या स्फीयर वगैरह ऐसे कुछ ड्रॉ करना है, तो यू विल हैव टू यूज 3D. सो हमने जो अभी फिगर्स ड्रॉ किए हैं, दोज आर इन 2D फॉर्मेट, 2 डायमेंशनल फिगर्स, सोनाली. एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज इट. ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, वी विल नॉट सी ऑल. अभी ऐसे ही अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो फील्ड टेक्स्ट फंक्शन इज देयर. स्ट्रोक विल एक्चुअली ड्रॉ द लाइन. अभी स्ट्रोक नहीं दिया तो लाइन ड्रॉ नहीं होगा. सिमिलरली अगर आपको टेक्स्ट ड्रॉ करना है, टेक्स्ट लिखना है, तो यू कैन यूज ctx.font एंड फिर इसको हमने फॉन्ट दिया एंड फिर फिल टेक्स्ट किया हमने. सो नाउ इफ यू सी टेक्स्ट कर सकते हो, लॉट ऑफ ड्राइंग यू कैन डू. तो वो टेक्स्ट भी दिखा रहा है. सो स्ट्रोक विल एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग योर लाइन अपीयर ऑन द स्क्रीन. So this is code. This code you will have to write for drawing. तो अभी एक कोड हमने दिया, तो इस पे ड्राइंग आ रहा है. So this is how you will have to write it. So like this you can use canvas tag also. You can check it out in the lab. अभी कौन से अलग अलग हम यूज, कौन से अलग अलग डायग्राम्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा कि कैनवास के लिए फंक्शंस कौन से हैं. तो ये कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के जो फंक्शंस है, दोज फंक्शंस यू कैन यूज ओवर हियर फॉर ड्रॉइंग. तो ये जो लाइन ऑफ कोड है, सो दिस विल ड्रॉ लाइन. यहां से जो कोड शुरू होता है, दिस विल ड्रॉ अ सर्कल. And this will display text. तो in script tag, inside script tag, this is comment line. Okay, inside script tag, if you want to write something, this is comment line, right? So this is how you can write the code. So अगर हमें ब्राउजर विंडो में प्रोग्रामेटिकली कुछ ड्रॉ करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो? कैनवास आप यूज कर सकते हो. और उसमें हम बहुत अलग अलग तरीके के टेक्स्ट हम दे सकते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके के ड्राइंग्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये जो है वो फॉन्ट का साइज है, और ये जो है वो फॉन्ट का नाम है, जो ये टेक्स्ट को हमें दिखाना है, राइट, इन दीज साइज. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द कैनवास टैग. तो ये सारे जो एडिशंस है, ये सारे एडिशन जो है वो HTML5 के हैं. ओके, जो हमने अभी इनपुट फॉर्म टैग में भी जो दिखाया, या अलग अलग डेटा टाइप्स हमने देखे, वो सारे किसके हैं? HTML5 के हैं, राइट? All these are additions which have happened in HTML5.
एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? अंशुमन, ये जो है वो फंक्शंस है विच यू विल हैव टू यूज फॉर ड्राइंग द सर्कल। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। यहाँ पे हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए पहले फंक्शन यूज करना पड़ेगा बिगिन पाथ। फिर ये जो आर्क है, इन दैट आर्क यू हैव टू गिव सेंटर एंड रेडियस। ये साइज है ना, हाउ मेनी पिक्सल साइज, हाइट एंड विड्थ फॉर दैट हेलो वर्ल्ड? सोनाली, ये उसका हाइट है और ये उसका विड्थ है, ये टेक्स्ट का। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द फंक्शंस। बट ये फंक्शंस आपको डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा। math.py will give you 3.14 constant और उसको हमने 2 pi and use this radius will give me the circle perimeter, right? So that we can draw the diagram. So these are the functions which you have to use for drawing the canvas. अभी जैसे canvas है वैसे और कौन सा फैसिलिटी है HTML5 में? सो और जो फैसिलिटी है HTML5 में है वो है शिवेंद्र, आई फ्रेम का हमने पेंडिंग रखा है। वी विल सी दैट लेटर, आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट नाउ। जस्ट अंडरस्टैंड दैट अगर आपको यूट्यूब का वीडियो देखना है तो आप आई फ्रेम टैग यूज कर सकते हो। आई हैव केप्ट दैट पेंडिंग, यू कैन ट्राई दैट आउट इन द लैब। ये जीरो रेडियस का नहीं है, ये रेडियस है। जीरो का मतलब है कौन से एंगल से शुरू करना है। तो अभी ये अब अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया तो वेदर यू वांट टू स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम हियर और यू वांट टू स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम हियर, सो ये जीरो एंगल ये रहता है, दिस इज जीरो एंगल। तो यहां से शुरू होगा ड्रॉ होना। Okay, so this is how you can use canvas, this is how you can use um, uh, media tags, that is audio and video. Similarly, अगर हमें कोड लिखना है तो you remember I told you that whenever you are using any web application, any other question anybody has? So as I told you, हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो वेब सर्वर पे रन होगा यहाँ पे। And that we are going to access via client. तो अभी जब हम कोई भी बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से यहाँ रिक्वेस्ट जाता है, बराबर? यहाँ से यहाँ रिक्वेस्ट जाता है और फिर यहाँ से यहाँ रिस्पॉन्स आता है। बट ये जो डेटा ट्रांसफर होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, वो कौन से प्रोटोकॉल से रन होता है? वो कौन से प्रोटोकॉल से रन होता है? HTTP। एंड HTTP ये प्रोटोकॉल कैसा है? तो HTTP प्रोटोकॉल ये कैसा है? स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, बराबर? So it will not remember the previous value, the one which we have entered. Do you agree? It will not remember the previous value that we have entered. तो अगर हमने कोई भी साइट यूज किया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हमने यहाँ पे flipkart.com यूज किया,
ये flipkart.com URL जो मैं टाइप कर रही हूँ, ये मेरा पहला रिक्वेस्ट जाएगा और उसका ये जो वेब पेज आया, ये हमारा आउटपुट आया, तो ये रिस्पॉन्स आया। हमने रिक्वेस्ट में क्या भेजा था, http://flipkart.com, और उसका ये रिस्पॉन्स आया। अभी ये flipkart.com में अगर मैंने बोला कि मुझे ये वाले चप्पल का इनपुट देखना है, तो इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो कैन यू सी यहाँ पे यूआरएल चेंज हो गया एंड उसने दूसरा पेज लोड किया एंड उसमें इट इज शोइंग मी द इंफॉर्मेशन अबाउट द it is showing me the information about the whatever I have clicked on, right? तो ये अभी मैंने दूसरा, जब मैंने उधर क्लिक किया था, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी अगर मैंने क्लिक किया तो इट इज सेंडिंग द न्यू रिक्वेस्ट, और अगर हमने न्यू रिक्वेस्ट भेजा तो उसका रिस्पॉन्स आ गया। बट हर बार मैंने किस पे क्लिक किया था वो याद नहीं रखता है। तो पहली बार हमने इधर शूज पे क्लिक, सॉक्स पे क्लिक किया तो उसने हमें सॉक्स दिखाए। फिर उसके बाद अगर हमने शूज पे क्लिक किया तो उसने शूज दिखाए। सो समथिंग लाइक दैट। बट हर एक रिक्वेस्ट में, अभी पहले रिक्वेस्ट में मैंने सैंडल्स देखा था, दूसरे रिक्वेस्ट में मैंने शूज देखा था, तीसरे रिक्वेस्ट में मैंने बॉटल्स देखा था, ये सब वो भूल जाएगा, ये सब वो याद नहीं रहेगा, रखेगा। बट अभी यहाँ पे अगर हमें कोई पेज दिख रहा है एंड ऑन दिस पेज इफ आई एम क्लिकिंग, तो आई वांट टू रिमेम्बर दिस, क्योंकि हमने इसको ऐड टू कार्ट किया है। फिर हमने दूसरा पेज, दूसरा आइटम सिलेक्ट किया और इसको भी ऐड टू कार्ट किया। फिर हमने तीसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और इसको भी ऐड टू कार्ट किया। तो नाउ वी नीड टू रिमेम्बर इट, राइट, दैट पहले इसमें क्या सिलेक्ट किया था, दूसरे में क्या किया था, तीसरे में क्या किया था। क्योंकि इसके बाद अगर हमने पेमेंट पे क्लिक किया तो आई शुड रिमेम्बर कि पेमेंट के लिए कौन से 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं। डू यू अग्री? वी विल हैव टू रिमेम्बर इट। तो इन वेब एप्लीकेशन अगर ये हर एक रिक्वेस्ट में जो आता है वो बियॉन्ड द रिक्वेस्ट अगर हमें सेव करना है, तो एक तरीका क्या है, यू कैन यूज सेशन ऑब्जेक्ट। एक तरीका क्या है, तो सेशन ऑब्जेक्ट यूज करो। बट ये सेशन ऑब्जेक्ट का डेटा जो है वो हमेशा कहाँ सेव होगा? सेशन ऑब्जेक्ट अगर हमने यूज किया तो वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? सर्वर पे सेव होगा। और ऐसे मिलियंस ऑफ यूजर्स आर कमिंग, और हर एक का डेटा अगर हम, हर कोई डेटा अगर हमने सर्वर पे रखा, तो विल सर्वर रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस टू स्टोर दिस डेटा? तो सर्वर विल रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस, एंड इसीलिए कुछ इंफॉर्मेशन जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमें याद रखनी है, तो उसके बाद सेशन यूज करो, नहीं तो दे कॉल इट एज कुकीज। अभी कुकीज से भी हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट कुकीज कहाँ पे स्टोर होते हैं? क्लाइंट मशीन पे, मतलब आप ही के मशीन पे कुकीज यूज होते हैं। तो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विथ इट। तो अभी अगर हमें कुछ डेटा याद रखना है तो हम सर्वर पे डेटा रखना चाहते हैं तो कहाँ रखेंगे? सेशन ऑब्जेक्ट में। बट अगर हमें वो सर्वर में हमने सबका डेटा स्टोर करना शुरू किया, तो साइज ऑफ सर्वर और सर्वर के मेमोरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट? सर्वर के मेमोरी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, एंड इसीलिए सम ऑफ द डेटा जो बहुत सिक्योर नहीं है, दैट वी कैन स्टोर ऑन द क्लाइंट मशीन। ओके, तो वो डेटा अगर हमने क्लाइंट मशीन पे स्टोर किया तो कुकीज के फॉर्म में वो स्टोर होता है। जैसे कि कुछ कुछ साइट के लिए अगर आपने क्लिक किया तो इट आस्क यू रिमेम्बर पासवर्ड, तो वो पासवर्ड आपके मशीन पे सेव होता है कहीं पे, विच इज इन द फॉर्म ऑफ कुकीज। ओके, या फिर एक्सेप्ट ऑल कुकीज अगर आपने किया रहेगा तो वो डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके मशीन पे स्टोर होता है, विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज कुकीज। तो अगर कोई भी डेटा हमें बियॉन्ड द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के अलावा भी अगर हमें वो चाहिए,
अगर हमें वो एक्सेस चाहिए, तो इन सच केसेस अगर हमने सर्वर पे डेटा रखा तो सेशन ऑब्जेक्ट में रखना है, अगर क्लाइंट मशीन पे रखा रखा तो कुकीज में रखना है। तो ये डेटा तो हम स्टोर कर सकते हैं, और डेटा तो हम टेक्स्ट फॉर्मेट में ही स्टोर कर सकते हैं, तो वो सिक्योर नहीं होता है, वो दिखता है। एंड वन मोर प्रॉब्लम विथ कुकीज, तो अभी ये कुकीज बहुत पुरानी टेक्निक है टू स्टोर द डेटा, एंड तब हमारे पास इतना रैम वगैरह कम था। सो वेन एवर यू यूज कुकीज, तो कुकीज का मैक्सिमम स्टोरेज कितना रहता है? 4 KB। अभी 4 KB मतलब कुछ भी नहीं, बट इनिशियली वो काफी बड़ा था, क्योंकि इनिशियली व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो हमारे मशीन का रैम रहता था 500 बाइट्स, अभी रैम रहता है 16 GB, राइट। एंड इसीलिए अगर कुकीज का साइज 4 KB है तो इट्स नॉट वेरी बिग साइज, राइट। एंड इसीलिए और एक तरीका आया एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्टोरेज एपीआईज। एंड ये स्टोरेज एपीआईज अगर हमें जावास्क्रिप्ट में यूज करना है, तो देन वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, वन इज कॉल्ड एज लोकल स्टोरेज एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज सेशन स्टोरेज। अभी प्रोजेक्ट जब आप करोगे तब आपको ये यूज करना पड़ेगा। हम कैसे यूज करते हैं दैट आई विल शो यू, बट ये क्या है, उस वो ऑब्जेक्ट्स है और उसके नाम क्या है? लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। आर यू विथ मी? Give me a minute. As I told you, whenever you are using web application, अगर हम काफी सारे रिक्वेस्ट यूजर को भेज रहे हैं और वो रिक्वेस्ट में हम क्या क्या भेज रहे हैं वो अगर हमें याद रखना है हमारे एप्लीकेशन में, तो उसकी फैसिलिटी डेवलपर को देनी पड़ेगी। तो डेवलपर को कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए। ओके, फॉर दैट डेवलपर विल हैव टू मेक सम अरेंजमेंट्स। और उसके लिए फैसिलिटीज कौन से है? तो उसके लिए फैसिलिटीज है, या तो आप सेशन ऑब्जेक्ट यूज करो, बट सेशन ऑब्जेक्ट यूज किया तो डेटा कहाँ स्टोर होगा? तो सेशन ऑब्जेक्ट यूज किया तो डेटा स्टोर होगा वेब सर्वर पे। अभी वेब सर्वर पे सबका डेटा अगर हमने स्टोर किया तो स्पेस काफी ज्यादा लगेगी, एंड इसीलिए हर एक क्लाइंट का डेटा उसके खुद के मशीन पे अगर हमें स्टोर करना है तो पहले हम क्या यूज करते थे? कुकीज। बट कुकीज का मैक्सिमम साइज कितना है? 4 KB, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। एंड इसीलिए अभी नए ब्राउजर में they have added these two objects, one is called as local storage and another one is called as session storage, and as I remember इसका maximum size है 5 MB, which is definitely bigger than 4 KB, right? which is definitely bigger than 4 KB। तो local storage और session storage जो है उसका size है 5 MB एंड इट इज ब्राउजर स्पेसिफिक। तो हर एक ब्राउजर का अपना अपना स्टोरेज अलग रहता है। सो इट इज ब्राउजर स्पेसिफिक, मतलब क्रोम में जो लिखोगे वो आपको एज में नहीं दिखेगा, एज में लिखोगे वो क्रोम में नहीं दिखेगा। तो दिस इज ब्राउजर स्पेसिफिक।
तो इसका साइज क्या है, 5 MB है एंड इट इज ब्राउजर स्पेसिफिक। तो ये ब्राउजर में कहीं पे तो दिखता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई लोकल स्टोरेज या कुकीज अगर हमने स्टोर किए हैं, तो यहाँ पे F12 अगर हमने प्रेस किया तो इसमें कैन यू सी, इफ यू गो टू एप्लीकेशन, तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज में हमने कुछ स्टोर किया है क्या, वो दिखता है। तो अभी ये flipkart.com कितने सारे वैल्यू स्टोर करता है, देखो लोकल स्टोरेज में, कैन यू सी। सिमिलरली अगर सेशन स्टोरेज में आपने कुछ स्टोर किया है तो वो यहाँ पे दिखता है। So flipkart.com is storing lot of things in the session storage and local storage while running the program. तो ये कुछ values वो internally use करता है. So those values it is using in the local storage and session storage. Okay. तो यहाँ से हम क्लियर भी कर सकते हैं उसको. There is an option available. हाँ, डिलीट द वैल्यू. तो हम उसको क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ से. सो सपोज आई एम सेइंग डिलीट द वैल्यू, तो ये लोकल स्टोरेज हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं. अभी ये जो लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज हम रखते हैं, तो इफ आई एम यूजिंग सेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट, तो वो कब तक रहेगा. तो ये दोनों का मिला के मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 5 MB. ओके. बट अभी ये जो ब्राउजर स्पेसिफिक है, नाउ सेशन स्टोरेज डेटा will remain available. How long? Till you log out and close the window. अभी जैसे ही विंडो क्लोज करोगे सेशन स्टोरेज चला जाएगा. बट ये जो लोकल स्टोरेज है, local storage data will remain available till you delete it. तो जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते, मैन्युअली डिलीट नहीं करते, तब तक लोकल स्टोरेज रहेगा. बट सेशन स्टोरेज कब तक रहेगा, जब तक आपका ब्राउजर विंडो ओपन है तब तक. बट लोकल स्टोरेज कब तक रहेगा, जब तक आप उसको मैन्युअली डिलीट नहीं करते तब तक रहेगा. ओके. सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू विल हैव टू डिसाइड कि हमें डेटा लोकल स्टोरेज में डालना है या सेशन स्टोरेज में डालना है. दैट यू हैव टू डिसाइड. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डू इट. अभी क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डू इट. So if you want to do it in session storage and local storage, there are 3 methods available. Okay. One of them is set item to store data. Another one is get item to retrieve the data. एंड डिलीट करने के लिए कौन सा है, डिलीट करने के लिए कौन सा है, रिमूव आइटम. टू डिलीट द की वैल्यू पेयर. तो अभी ये जो डेटा है
ये अगर हमें स्टोर करना है लोकल स्टोरेज में, तो लोकल स्टोरेज में या सेशन स्टोरेज में, तो बेसिकली लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज क्या है, दीज आर ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो सपोज यहाँ पे कहीं पे ब्राउजर पे एक ऑब्जेक्ट है अवेलेबल एंड नेम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज लोकल स्टोरेज। अभी इसके अंदर अगर हमें कुछ स्टोर करना है, जैसे कि JWT टोकन मिलता है कभी कभी सिक्योरिटी के लिए, तो वो JWT टोकन अगर हमें सेव करना है या कोई यूजर नेम पासवर्ड सेव करना है टेम्पररीली, तो देन यू विल हैव टू यूज की यूजर नेम एंड उसका वैल्यू क्या है वो। फिर अगर हमें पासवर्ड स्टोर करना है तो की और उसका वैल्यू क्या है वो। सो इनसाइड लोकल स्टोरेज या इनसाइड स्टेशन स्टोरेज ये जो वैल्यूज है वो कैसे स्टोर होंगे, इन द टेक्स्ट फॉर्मेट और की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में स्टोर होंगे। JWT टोकन है हमारा की एंड ये जो है वो हमारा वैल्यू है। यूनेम इज आवर की एंड ये जो है वो हमारा वैल्यू है। पासवर्ड इज अ की और ये जो है वो हमारा वैल्यू है। तो ये कौन से फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। सो इफ आई वांट टू असाइन द वैल्यू, तो हमें कोई की देना पड़ेगा और उसका कुछ वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, की देना पड़ेगा और वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। एंड अगर ये वैल्यू हमें रिट्रीव करनी है तो यू विल हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर की टू रिट्रीव द वैल्यू। Okay, any questions still here? How to use it I will show you, but any questions to anybody till now whatever I have explained? So whenever you are writing any security, whenever you are writing any security, तो तब हमें ये एक टोकन मिलता है which is called as जावा वेब टोकन। तो अगर जावा में आप वेब सर्विस लिख रहे हो, वेब एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो यू गेट अ टोकन फॉर वेरिफिकेशन। मतलब हर बार हमें यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है। ये टोकन अगर हमने यूज किया तो वो हमारा यूजर ने तो हमें ऑथेंटिकेट करता है। सो फॉर दैट वी यूज अ JWT टोकन। ओके, और वो टोकन अगर हमें स्टोर करके रखना है, सो इट इज जेसन वेब टोकन, नॉट जावा वेब टोकन, इट्स जेसन वेब टोकन विच हेल्प्स यू टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी। तो अभी यूजुअली कोड अगर हमें रन करना है तो यूजुअली हमारा वेब एप्लीकेशन रन कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें लॉगिन करने को बोलेगा। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। अभी ये लॉगिन में हमने पास क्या क्या किया, यूजर नेम एंड पासवर्ड हमने पास किया। अभी सर्वर क्या करेगा, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो वैलिडेट करेगा और बोलेगा कि ये जो यूजर है वो वैलिड यूजर है, बराबर। और क्या बोलेगा कि ये यूजर जो है वो वैलिड यूजर है। अभी ये यूजर नेम और पासवर्ड जाएगा सर्वर के पास, इट विल वैलिडेट द यूजर और फिर वो हमें मेनू पे भेजेगा। यहाँ पे इट विल डिस्प्ले मेनू, नया पेज आएगा। तो ये रिक्वेस्ट हुआ और उसका ये रिस्पॉन्स हुआ। बट जैसे ही रिस्पॉन्स आया वैसे ये यूजर नेम और पासवर्ड चला गया। सर्वर को अभी पता नहीं है यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, बराबर। HTTP प्रोटोकॉल है ना, स्टेटलेस है, तो अभी यूजर नेम और पासवर्ड वो भूल गया। तो नाउ इफ आई एम क्लिकिंग ऑन द प्रोडक्ट, अगर मुझे ऑर्डर ऐड करना है तो क्या वो हमें वापस लॉगिन पूछता है, नहीं। तो वो कहीं पे स्टोर करके रखता है ना, ये यूजर नेम पासवर्ड जो है वो भूलना नहीं है ना उसको, वो कहीं पे स्टोर करके रखता है। तो यूजुअली क्या होता है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस, जब भी आप यूजर नेम और पासवर्ड पास करोगे ये सर्वर एक नंबर जनरेट करेगा, एक स्ट्रिंग जनरेट करेगा which will be unique for every user and that is nothing but called as JWT token, और ये टोकन हमें भेजेगा। now this token we will have to store somewhere on our machine, और जैसे ही हम दूसरा रिक्वेस्ट पास करेंगे तो ये रिक्वेस्ट के पास इंस्टेड ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें क्या भेजना पड़ेगा, हमें क्या भेजना पड़ेगा, ये टोकन नंबर। ये जो टोकन नंबर हमें मिला है ये हर रिक्वेस्ट के पास पास जाएगा एंड देन सर्वर विल अंडरस्टैंड कि ये वैलिड यूजर है
और उसने ये यूजर नेम और पासवर्ड डाला है एंड दिस इज दिस यूजर, ये आइडेंटिफाई करने के लिए वो हमें एक नंबर देता है विच इज यूनिक, और वो नंबर है जेसन वेब टोकन फॉर सिक्योरिटी। तो अभी जब भी हम लॉग इन करेंगे, अभी अकाउंट बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो उसमें अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड भेजा, तो ये यूजर नेम और पासवर्ड अभी नेक्स्ट रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पे अगर अभी मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया तो वापस नया रिक्वेस्ट जाने वाला है, तो ये रिक्वेस्ट में ये यूजर नेम पासवर्ड नहीं रहेंगे ना, वो भूल गया है, क्योंकि ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। जैसे ही ये रिक्वेस्ट गया, उसका रिस्पॉन्स आया, तो सर्वर हैज फॉरगॉटन योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अगर हमने वापस यहाँ पे क्लिक किया तो दूसरा रिक्वेस्ट जाएगा। अभी ये है रिक्वेस्ट 1 और ये है रिस्पॉन्स 1, राइट। अभी ये है रिक्वेस्ट 2, अभी जो रिक्वेस्ट 2 जाएगा तो वापस यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा हमें, एंड इसीलिए वो क्या करता है, जब भी हमारा यूजर नेम और पासवर्ड आएगा तो हमें एक टोकन देके रखेगा जिसको हम बोलते हैं JWT टोकन। और ये JWT टोकन हम, ये एक एग्जाम्पल है कि लोकल स्टोरेज में हम क्या स्टोर करने वाले हैं, ये एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि यही सिर्फ स्टोर करना है, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, बट दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि यूजुअली ये जो JWT टोकन है वो कहाँ स्टोर होगा, तो ऑब्वियसली क्लाइंट मशीन पे स्टोर होगा। फिर कैसे स्टोर करेंगे, तो लोकल स्टोरेज में स्टोर करके रखेंगे इधर, एंड देन नेक्स्ट टाइम जब हम नया प्रोडक्ट के पे क्लिक करके रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो हाउ सर्वर विल नो कि ये कौन सा यूजर है और उसका ऑथेंटिकेशन क्या है, तो ये टोकन भी हमें भेजना पड़ेगा। सो दैट अभी यहाँ पे आपने ऐड टू कार्ट किया तो कौन से यूजर के कार्ट में ऐड करना है, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूजर्स आर गोइंग टू सेंड रिक्वेस्ट, राइट, फॉर ऐड टू कार्ट टू flipkart.com टू amazon.com। तो कौन से यूजर के कार्ट में डालना है ये फ्लिपकार्ट को कैसे पता चलेगा, तो हर रिक्वेस्ट के साथ हमें एक टोकन नंबर भेजना पड़ेगा विच विल आइडेंटिफाई यू ऑन द सर्वर, विच विल आइडेंटिफाई यू ऑन द सर्वर, और वो हमें हर रिक्वेस्ट के साथ पास करना पड़ेगा। इसीलिए हर बार हर रिक्वेस्ट में लॉगिन अलग से नहीं करना पड़ेगा। अभी ये होने के बाद ये प्रोडक्ट हमारे कार्ट में ऐड हो चुका है और वापस उसने हमें यही प्रोडक्ट्स दिखाए, फिर वापस क्लिक किया तो और एक रिक्वेस्ट जाने वाला है और वापस वो ब्राउजर पे सेव होगा और वापस आ जाएगा इधर। तो हर बार हाउ इट विल आइडेंटिफाई कि ये आप ही हो, तो उसके लिए जो टोकन मिलता है दैट टोकन इज कॉल्ड एज JWT टोकन। और जब भी हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो ये ब्राउजर लोकल स्टोरेज से ये JWT टोकन हर रिक्वेस्ट के साथ भेजता है। ये हर हर रिक्वेस्ट के साथ भेजेगा, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट सर्वर विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये वैलिड यूजर है और उसने कहीं पे लॉगिन और लॉगिन किया था और ये वैलिड यूजर है, राइट। अभी ये JWT टोकन हम हर रिक्वेस्ट के साथ भेजेंगे तो हर रिक्वेस्ट के पहले हमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर ये स्टोर कहाँ करोगे, स्टोर कहाँ करोगे, अभी डेटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे, हमें हमारे मशीन पे स्टोर करना पड़ेगा ना। तो लोकली स्टोर करना है तो या तो कुकीज में करेंगे या तो लोकल स्टोरेज में करेंगे, बट कुकीज का साइज बहुत कम है इसलिए आजकल कुकी कोई यूज नहीं करता है। आजकल क्या यूज होता है, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। तो अभी सिर्फ यही सेशन के लिए याद रखना है तो सेशन स्टोरेज में रखो, और ये बंद होने के बाद भी याद रखना है तो लोकल स्टोरेज में रखो। सो ये डेवलपर को डिसाइड करना है कि ये डेटा हमें सेशन स्टोरेज में रखना है या लोकल स्टोरेज में रखना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। ओके, सो दैट यू हैव टू डिसाइड। तो ये लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज जो है ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, एंड इसीलिए ये जो JWT टोकन है दैट इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट इन कुकीज वी आर गोइंग टू स्टोर इट इन, वो ब्राउजर कहाँ पे, वो कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, लोकल स्टोरेज में स्टोर करना चाहिए।
और ये कोड डेवलपर को लिखना पड़ता है, ये अपने आप नहीं होता है, उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ता है। तो वो जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना पड़ेगा आपको, राइट? आपको कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो वो कोड के लिए भी अभी जावास्क्रिप्ट ही यूज करना पड़ेगा, बट ये फैसिलिटी जो है वो किसका है? HTML5 का है। सो HTML5 में अगर हमें स्टोरेज API डेमो देखना है, तो हाउ यू विल यूज इट? सो नाउ राइट नाउ आई एम राइटिंग HTML पेज, और उसके अंदर हमने बॉडी टैग लिखा, और ये बॉडी टैग में सपोज हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा यूजर नेम कोलन, और यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू यूनेम, ID इज इक्वल टू यूनेम, ऐसे कुछ तो भी वैल्यू अगर हमने लिखा। एंड सपोज यहाँ पे अगर हमने एक बटन दिया, अभी बटन कैसे लिखोगे? बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और ये बटन पे हमने कुछ दिखाया। ऐड टू लोकल स्टोरेज। अभी ऐसे ही अगर हमने और एक बटन दिया, रिमूव फ्रॉम लोकल स्टोरेज, तो अभी हमने क्या किया? इनपुट टेक्स्ट बॉक्स दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया? ऐड टू लोकल स्टोरेज किया, और यहाँ पे हमने क्या किया? रिमूव लोकल स्टोरेज किया, बराबर? सो वी हैव टू बटन्स, जैसे कि लोकल स्टोरेज में ऐड करो और उसको रिमूव करो। सिमिलरली अगर हमने डिस्प्ले कहा, तो इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट कोड लिखना पड़ेगा। HTML के साथ साथ हमें थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिखना पड़ेगा फॉर लोकल स्टोरेज। और ये लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करने के लिए हमें फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। तो अभी पहले देखेंगे कि लोकल स्टोरेज में ऐड कैसे करते हैं। तो अगर हमने ये बटन पे क्लिक किया तो कोई जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, एंड इसीलिए यहाँ पे आई विल चेंज दिस टाइप टू बटन नॉट सबमिट, और फिर मुझे लिखना पड़ेगा जब भी मैं ये बटन पे क्लिक करूंगी, देन वी वांट टू कॉल अ फंक्शन ऐड डेटा। तो अभी ऐड डेटा फंक्शन भी हमें लिखना पड़ेगा, राइट? ऐड डेटा फंक्शन भी तो हमें लिखना पड़ेगा। तो अभी कैसे लिखोगे ऐड डेटा फंक्शन? तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर बटन, तो सबसे पहले यहाँ पे सपोज आई एम एडिंग द स्क्रिप्ट टैग। अभी ये स्क्रिप्ट टैग हम हेड सेक्शन में भी डाल सकते हैं, तो अभी मैं
हेड सेक्शन में डालती हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा स्क्रिप्ट टैग। अभी ये स्क्रिप्ट में हमें कोड लिखना पड़ेगा विच इज फॉर लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज, विच इज फॉर लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। तो हमें कौन सा फंक्शन लिखना है अभी? ऐड डेटा। तो ये स्क्रिप्ट में हमें यहाँ पे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा ऐड डेटा, और ये ऐड डेटा क्या करेगा? तो जो भी हम ये टेक्स्ट बॉक्स में दिखेंगे, ये जो भी हम ये टेक्स्ट बॉक्स में दिखे लिखेंगे, तो वो हमें जब भी हम ये बटन पे क्लिक करेंगे तो लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है। तो कैसे स्टोर करोगे लोकल स्टोरेज में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू चेक कि लोकल स्टोरेज हमारा ब्राउजर सपोर्ट करता है क्या। सो फर्स्ट स्टेप वी विल हैव टू डू चेक वेदर लोकल स्टोरेज इज सपोर्टेड बाय ब्राउजर। तो ब्राउजर उसको सपोर्ट करता है क्या? तो कैसे चेक करोगे? सो ओवर हियर आई विल हैव टू राइट इफ, और इधर लिखना पड़ेगा टाइप ऑफ स्टोरेज। टाइप ऑफ स्टोरेज is not equal to undefined. So this will, if this is true, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो हमें बताता है कि लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट आपका ब्राउजर सपोर्ट करता है। अभी यहाँ पे अगर मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करना है, so over here I can write local storage dot set item, local storage dot set item, और इधर हमें क्या स्टोर करना है? तो वी विल हैव टू गिव सम की, तो नेम स्टोर करना है, और वैल्यू क्या देनी है? और वैल्यू क्या देनी है? अभी वैल्यू हमें देनी है जो ये टेक्स्ट बॉक्स में डाली है वो। अभी ये टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू हमें यहाँ पे कैसे मिलेगा? सो इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू इन द टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी ये जो आईडी है वो क्या है? यूनेम है। तो विल इट रिट्रीव द वैल्यू फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स, और इधर मुझे लिखना पड़ेगा वैल्यू। तो ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा? रिट्रीव द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड स्टोर इट इनटू विच वेरिएबल इज एनएम वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अभी लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की है हमारा नेम, और उसको वैल्यू क्या स्टोर करना है? एनएम। तो ये वैल्यू भी स्ट्रिंग है और ये नाम भी स्ट्रिंग है, बट ये अभी हमने स्टोर कर लिया लोकल स्टोरेज में। अभी लोकल स्टोरेज की जगह पे यहाँ पे सेशन स्टोरेज यूज किया, तो वो जब तक ब्राउजर बंद नहीं करते तब तक रहेगा। अगर लोकल स्टोरेज यूज किया तो ब्राउजर वापस खोलेंगे तब भी रहेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि ये लोकल स्टोरेज में क्या रखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी इमेजिन करो कि हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया, एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन, अभी जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगी तो कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है? ऐड डेटा। क्यों होगा? क्योंकि हमने लिखा है इधर ऑन क्लिक कॉल विच फंक्शन। तो ऐड डेटा में जाके वो इधर आ जाएगा। अभी ऐड डेटा में इट इज चेकिंग वेदर योर ब्राउजर सपोर्ट स्टोरेज।
अगर ट्रू है तो यहाँ पे वी आर रिट्रीविंग द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स एंड दैट वी आर स्टोरिंग इनटू द ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट कुछ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप जनरेट होता है। जैसे ही आप ब्राउजर खोलोगे तो ये बिल्ट इन है, अपने आप जनरेट होगा। So now here we are saving this particular name into local storage. बट क्या हम इसमें काउंट भी स्टोर कर सकते हैं कि ये ऐड डेटा पे हमने कितनी बार क्लिक किया है? क्या काउंट भी हम स्टोर कर सकते हैं इसमें? दैट ऑन दिस ऐड डेटा हाउ मेनी टाइम्स वी क्लिक्ड, तो कर सकते हैं। तो हमें अगर पहली बार चेक करना है तो हियर वी विल राइट इफ, एंड नाउ वी कैन राइट हियर लोकल स्टोरेज डॉट काउंट is not equal to undefined। तो पहले हम चेक कर रहे हैं कि जैसे ये नेम की है वैसे काउंट नाम का की हमने सेव किया है क्या? तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या फिर द सेम थिंग कैन बी चेक्ड विथ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। तो राइटिंग इट लाइक दिस and writing it like this is one and the same। तो हमें अभी क्या देखना है कि ये लोकल स्टोरेज में काउंट नाम का वैल्यू है क्या? सो अगर अनडिफाइंड है, डज इट मीन कि ये हम पहली बार स्टोर कर रहे हैं? डज इट मीन कि काउंट नहीं है तो हम पहली बार स्टोर कर रहे हैं? यस और नो? तो अगर पहली बार स्टोर कर रहे हैं तो ये हमें इधर काउंट को वैल्यू क्या असाइन करनी पड़ेगी? 1। वैल्यू क्या असाइन करनी पड़ेगी? 1, क्योंकि पहली बार कॉल किया है। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा? लोकल स्टोरेज डॉट काउंट, उसमें अभी काउंट स्टोर करना पड़ेगा। बट वो क्या होगा? तो जो भी अभी करंट का लोकल स्टोरेज का काउंट है वो मतलब 1 रहेगा तो 1, 1 रहेगा तो 1, और उसके अंदर हमें 1 ऐड करना है। तो व्हाट वी आर राइटिंग हियर, वी आर चेकिंग कि काउंट है या नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू, उल्टा लिखा, अगर नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड है मतलब वो है, और अगर नहीं है तो हमें उसको इनिशियलाइज किसको करना है? 1 को इनिशियलाइज करना है, राइट? सो वी आर चेकिंग लोकल स्टोरेज में काउंट है क्या? अगर है तो वी वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट बाय 1, और अगर नहीं है तो हमें उसको यहाँ पे सिंगल वैल्यू करनी है। बट लोकल स्टोरेज में जो डेटा स्टोर होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होगा, इसलिए +1 विल नॉट हेल्प यू टू ऐड द वैल्यू। तो इसलिए इधर हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो फॉर दैट वी विल हैव टू राइट अ फंक्शन कॉल्ड एज पार्सिंट, नहीं तो एडिशन नहीं होगी। नहीं तो एडिशन नहीं होगी। एंड सपोज अभी ये लोकल स्टोरेज हमने सेट करने के बाद यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमें लोकल स्टोरेज दिखाओ। तो एक पॉपअप में अगर मुझे लोकल स्टोरेज दिखाना है तो क्या ना, या फिर इधर नीचे दिखाएंगे। और ये div टैग को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी दिया मैंने, माई div। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि कितने टाइम हमने क्लिक किया। तो कैसे लिखोगे? सो नाउ हियर आई विल राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमने डाला माई div,
और उसके अंदर लिखा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, अभी आप कोड मत समझो, ये लिखना पड़ता है ऐसे लिखो, ऐसे जो मैं लिख रही हूँ वो सिर्फ देखो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे तो ये सब कुछ हम बार बार यूज करने वाले हैं। तो इधर अभी हम क्या लिखेंगे, यू क्लिक्ड, हाउ मेनी टाइम्स वी क्लिक्ड, तो इसको कॉन्केटिनेट करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट काउंट की वैल्यू, और इधर लिखेंगे टाइम्स, तो ये आउटपुट हमें दिखना चाहिए। सो अभी लोकल स्टोरेज में हम क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, नेम स्टोर कर रहे हैं, हर बार जो हम देंगे वो ही नेम स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम काउंट इंक्रीज कर रहे हैं, हर बार हम क्लिक करेंगे तब, और फिर वो काउंट हमें दिखता रहेगा। ओके, सो नाउ आई एम सेविंग दिस पर्टिकुलर कोड, इतना ही करके देखते हैं पहले, वी विल चेक इज देयर एनी एरर। तो नाउ इफ यू सी, इज इट शोइंग मी द फॉर्म, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे बटन आ रहा है, यहाँ पे रिमूव फ्रॉम लोकल स्टोरेज आ रहा है, डिस्प्ले फ्रॉम लोकल स्टोरेज। तो अभी ऐड पे क्लिक किया तो इज इट शोइंग मी यू क्लिक्ड वन टाइम। अभी यहाँ पे अगर मैंने लिखा यूजर 1 एंड इफ आई क्लिक ऑन ऐड टू लोकल स्टोरेज, इट इज नाउ शोइंग NaN टाइम्स। तो अभी देखते हैं क्यों एरर आ रहा है, पहला तो उसने हमें दिखाया बराबर, तो अभी यहाँ पे कुछ एरर है क्या देखना पड़ेगा। सो नाउ वी आर राइटिंग लोकल स्टोरेज डॉट काउंट इज इक्वल टू पार्सिंट, ओके, ये काउंट हमें पार्स इंट करना है। सो नाउ इफ वी रिफ्रेश इट, अभी लोकल स्टोरेज पे क्लिक किया तो इज इट रिटर्निंग द प्रीवियस वैल्यू, तो यस, तो पहले हम उसको डिलीट कर देते हैं। नाउ इफ वी गो टू F12 और यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन में जाते हैं तो इधर लोकल स्टोरेज दिखता है, तो कैन यू सी यहाँ पे अभी काउंट लोकल स्टोरेज आ गया है, पहले नहीं था। नाउ आई एम डिलीटिंग दिस, ओके। नाउ इफ आई क्लिक ऑन ऐड टू स्टोरेज, तो इज इट स्टोरिंग दिस काउंट इक्वल टू 1 एंड नेम स्टोर हो रहा है क्या, देखो इधर लोकल स्टोरेज में, बट अभी हमारा टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है तो नेम यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। नाउ हियर इफ आई एंटर यूजर 1 एंड इफ आई क्लिक ऑन ऐड टू लोकल स्टोरेज, अभी आया क्या, देखो यूजर का वैल्यू यूजर 1 आया और काउंट हो गया 2, और इधर 2 टाइम्स दिख रहा है ना। वापस हमने क्लिक किया ऐड टू स्टोरेज, तो यहाँ पे 3 हुआ और ये वैल्यू इधर वैसे ही है। अभी अगर हमने इधर CC एंटर किया एंड ऐड टू लोकल स्टोरेज किया, तो इज इट एडिंग द वैल्यू विच वी आर एंटरिंग इन द लोकल स्टोरेज, राइट। और फिर वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। नाउ व्हाट इफ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन, अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या करना है हमें, रिमूव फ्रॉम लोकल स्टोरेज किया तो क्या करना है, डिलीट करना है, बराबर। रिमूव फ्रॉम लोकल स्टोरेज किया तो हमें काउंट डिलीट करना है। अभी उसके पहले हम एक देखते हैं कि अभी लोकल स्टोरेज में हमारा काउंट कितना है, देखो लोकल स्टोरेज में काउंट कितना है, 4 है। अभी मैं ये क्लोज किया विंडो, यहां से भी हमने बंद कर दिया। अभी हैव आई स्टॉप्ड रनिंग दिस पर्टिकुलर पेज, यस। नाउ इफ आई एम रनिंग इट, तो उसको 4 याद रहेगा या नहीं रहेगा, उसको 4 याद रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज यूज कर रहे हैं। नाउ इफ आई क्लिक ऑन ऐड स्टोरेज, इज इट शोइंग मी 5 टाइम्स,
इफ आई क्लिक ऑन लोकल स्टोरेज, इज इट शोइंग मी 6 टाइम्स? अभी मैंने वापस क्लोज किया और यहाँ पे वापस रीस्टार्ट किया, तो वापस हमारा पेज आया। अभी क्या है लोकल स्टोरेज में? 6 है, तो इज इट शोइंग मी 7 टाइम्स? So yes, so is it remembering previous value? So it is remembering previous value. तो ऐसे previous value अगर हमें save करनी है तो we can go for local storage, and this is how you can store the value. This is how you can retrieve and display the value. Now what we want is if I click on this, इसके ऊपर अगर हमने क्लिक किया तो हमारा डेटा डिलीट होना चाहिए. सो नाउ सपोज हियर आई एम राइटिंग ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और इधर हम क्या करेंगे, डिलीट. फंक्शन लिखते हैं डिलीट डेटा. तो जब भी हम ये बटन पे क्लिक करेंगे, इज इट गोइंग टू कॉल द फंक्शन बाय नेम डिलीट डेटा? तो अभी और एक फंक्शन लिखना पड़ेगा. जैसे हमने ये ऐड डेटा फंक्शन लिखा, वैसे ही ये फंक्शन के नीचे हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन डिलीट डेटा. तो अभी लोकल स्टोरेज में से क्या डिलीट करना है हमें? काउंट. तो कैसे करोगे? सो हियर आई विल हैव टू राइट लोकल स्टोरेज डॉट विच फंक्शन, रिमूव आइटम. क्या रिमूव करना है? द की विच वी वांट टू रिमूव. अभी और क्या रिमूव करना है हमें? नेम. तो यहाँ पे की देना है, कौन सा की डिलीट करना है, दैट यू हैव टू स्पेसिफाई. सो अगर हमें कुछ भी डेटा डिलीट करना है तो यू विल हैव टू यूज विच फंक्शन? फॉर डिलीटिंग डेटा कौन सा फंक्शन यूज करना है? रिमूव आइटम फंक्शन यूज करना है. ओके, सो अभी देखते हैं कि रिमूव होता है क्या. सो नाउ आई एम री रनिंग द पेज. नाउ इफ आई गो टू एप्लीकेशन ओवर हियर, तो क्या लोकल स्टोरेज अभी भी है हमारा अकाउंट? सो यू कैन सी लोकल स्टोरेज हमारा अभी भी है. तो नाउ हियर इट इज शोइंग मी लोकल स्टोरेज. अभी हमने F12 किया और एप्लीकेशन में गए तो इट इज स्टिल शोइंग मी दिस लोकल स्टोरेज. कैन यू सी? नाउ इफ आई क्लिक ऑन ऐड टू लोकल स्टोरेज, इज इट अगेन शोइंग मी 8 टाइम्स हियर? और नेम ब्लैंक हो गया. अभी यहाँ पे मैंने किशोरी डाला और ऐड टू स्टोरेज किया तो नेम स्टोर हो गया और ये काउंट 9 हो गया. बट व्हाट इफ आई डू रिमूव लोकल स्टोरेज, तो इज इट डिलीटिंग फ्रॉम हियर? कैन यू सी? चला गया, नेम भी चला गया, काउंट भी चला गया. सो रिमूव करने के लिए क्या किया? रिमूव लोकल आइटम. अभी वापस ऐड टू लोकल स्टोरेज करेंगे तो कैन यू सी काउंट वापस 1 से शुरू हुआ और ये नेम वापस ऐड हो गया. राइट. एंड अगर हमने रिमूव वापस ऐड किया तो अभी 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा. बट अगर हमने रिमूव लोकल स्टोरेज किया तो पूरा डेटा चला जाएगा. राइट. तो अभी हमारे पास इधर कुछ भी नहीं है डेटा में. एंड इफ यू वांट टू रिट्रीव एंड डिस्प्ले द वैल्यू फ्रॉम लोकल स्टोरेज, तो ये बटन पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा. सो हाउ वी विल राइट इट? तो यहाँ पे इफ आई एम राइटिंग ऑन क्लिक, और एक फंक्शन लिखना पड़ेगा गेट डेटा. तो ऐड डेटा लिखा हमने, डिलीट डेटा लिखा हमने और गेट डेटा लिखा हमने. नाउ इन दिस गेट डेटा अगर हमें कुछ दिखाना है डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, तो फंक्शन कैसे लिखोगे? फंक्शन गेट डेटा
तो अभी यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो हम गेट आइटम यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू स्टोर कर लेंगे काउंट, और यहाँ पे हमें नेम लिखना है, तो कैन वी असाइन द नेम ऑल्सो फ्रॉम हियर। अभी यहाँ पे गेट आइटम लिखा तो भी चलेगा, या लोकल स्टोरेज डॉट नेम लिखा तो भी चलेगा, आपकी चॉइस है कैसे करना है। और अगर ये वैल्यू हमें दिखानी है तो कैन आई डिस्प्ले इट इन दी, तो एक तरीका है कि हम पेज पे दिखाएं, और एक तरीका है हम अलर्ट बॉक्स में दिखा सकते हैं। तो अलर्ट इज अ पॉपअप बॉक्स जिसमें हम दिखाएंगे CNT प्लस कॉमा प्लस NM। So now if I use this function, is it going to display me the data count and name over here? तो yes, अभी ये ऐसे किया तो भी चलेगा, ऐसे किया तो भी चलेगा, दोनों will retrieve the value and assign it over here, दोनों में से कुछ भी चलेगा। So this is how you will have to write it. So let's check अभी ये भी function चलता है क्या। So now I'm refreshing this page. तो अभी लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने डाला user1 add to local storage, तो काउंट भी आ गया, वापस add to local storage किया 4-5 बार, and now here if I am writing display, तो is it showing me 5 and user1 in the pop-up box, alert में ये pop-up box आता है, and if I click on OK ये pop-up box बंद हो जाएगा। वापस अगर हमने डिस्प्ले किया तो is it appearing like a pop-up box, तो yes। और ऐसे पॉपअप बॉक्स में दिखाना है तो हमें क्या यूज करना है, अलर्ट, अलर्ट यूज करना है। सो दिस इज HTML5 फीचर दैट इज लोकल स्टोरेज। तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो इधर ऐड हुआ, रिमूव किया तो रिमूव हुआ, ऐड हुआ तो ऐड हुआ, डिस्प्ले किया तो इट इज डिस्प्लेइंग अस द वैल्यू ऑफ बोथ द लोकल स्टोरेज। आर यू गेटिंग इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर राइटिंग? तो ये लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज है वो किसकी फैसिलिटी है, HTML5 की फैसिलिटी है। बट HTML5 के कुछ फैसिलिटीज के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है। रिमूव आइटम से एक ही डिलीट होगा, समीर, रिमूव आइटम आपने यूज किया तो एक ही यूज होगा। तो मैंने ये फाइल चैट बॉक्स में भेजी है, so you can try this out on your machine. So now I'm repeating, whenever we are using web application में हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और हमें रिस्पॉन्स मिलता है। अभी रिक्वेस्ट में जो भी डेटा हम पास करेंगे वी आर गोइंग टू फॉरगेट दैट डेटा, एंड इसीलिए वो डेटा हमें हमारे मशीन पे कहीं पे स्टोर करना रख पड़ता है। अभी ये स्टोर जो करना है तो स्टोर करने के लिए या तो हम कुकीज यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोकल स्टोरेज यूज कर सकते हैं, या फिर हम सेशन स्टोरेज यूज कर सकते हैं। कुकीज, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, इसमें डेटा जो स्टोर होता है वो सिक्योर नहीं रहता है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं स्टोर होता है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होता है। ओके, इट गेट स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो हम उसको देख सकते हैं, वो सिक्योर नहीं है डेटा। So if you want to use that,
तो ये लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है, तो उसको यूज कैसे करोगे? तो उसको यूज कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। तो हमने एक पेज डिजाइन किया जिसमें हम यूजर नेम ले रहे थे, और उसमें हमने एक बटन दिया फॉर एडिंग टू द लोकल स्टोरेज, एक बटन दिया रिमूव फ्रॉम लोकल स्टोरेज, और एक बटन दिया डिस्प्ले फ्रॉम लोकल स्टोरेज। और हर एक बटन पे क्लिक किया तो अलग फंक्शन लिखा है, जैसे कि ऐड डेटा। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन, इट विल गिव कॉल टू विच फंक्शन इज ऐड डेटा फंक्शन। अभी ऐड डेटा में हमने क्या किया है देखो। ऐड डेटा में सबसे पहले हमने चेक किया कि ये हमारा जो ब्राउजर है वो स्टोरेज सपोर्ट करता है क्या। हमारा ये जो ब्राउजर है वो स्टोरेज सपोर्ट करता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक। और अगर सपोर्ट करता है तो हमने क्या किया, यहाँ पे वी रिट्रीव द वैल्यू फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स। अभी हमने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लिया और उसको लोकल स्टोरेज में असाइन किया। तो यहाँ पे अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो राइटिंग इट लाइक दिस एंड राइटिंग इट लाइक दिस इज वन एंड द सेम। ये सेटर मेथड है और ये हमने डायरेक्टली वैल्यू असाइन किया है, दोनों में काम एक ही होगा। तो ऐसे भी यूज कर सकते हो या फिर ऐसे भी यूज कर सकते हो। बट काउंट में हमें क्या करना है, काउंट अगर डिफाइंड मतलब काउंट हम पहली बार स्टोर करना है तो 1 असाइन करना है, और दूसरी बार तीसरी बार करना है तो काउंट का पहला वाला वैल्यू रिट्रीव करना है। तो इधर हम गेट आइटम भी यूज कर सकते थे, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है और फिर उसमें 1 ऐड करके आई वॉन्ट टू स्टोर द डेटा इन टू दिस वेरिएबल, तो हमने वो स्टोर किया। सो दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ काउंट इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो पहला जो वैल्यू है वो हमने रिट्रीव किया, बट वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, और फिर उसमें हमने 1 ऐड किया और वापस हमने ओल्ड वैल्यू को ओवरराइट किया। और अगर ये पहले से डिफाइंड नहीं है, मतलब हम पहली बार आ रहे हैं इधर, तो इधर हमने काउंट को असाइन किया 1। एंड फिर ये जो काउंट है वो हमें दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, तो इसलिए इसका पहले कंट्रोल लेना पड़ेगा। तो वो कैसे लिया हमने कंट्रोल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये आईडी दिया, और उसके इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी में वी हैव रिटर्न यू क्लिक्ड, जितना लोकल स्टोरेज में काउंट है उतना वैल्यू टाइम्स। तो ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया। So because of add data, these two values are getting added into local storage. अभी दूसरा बटन हमने कौन सा दिया है, तो दूसरा बटन हमने दिया है डिस्प्ले फ्रॉम लोकल स्टोरेज। तो हमने गेट डेटा फंक्शन लिखा और इसमें हमने काउंट को रिट्रीव कर लिया, इसमें से हमने नेम को रिट्रीव कर लिया, और फिर वो अलर्ट बॉक्सेस हमने यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में हमने वो डेटा दिखाया। So what this code will do? Local storage and save it in the variables. तो ये डिस्प्ले करने के लिए हमने वेरिएबल में स्टोर किया और अलर्ट बॉक्स में हमने उसको डिस्प्ले किया। और अगर हमें डिलीट डेटा करना है तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये बटन पे क्लिक किया तो ये फंक्शन कॉल होगा। सो नाउ हियर वी आर गिविंग कॉल टू विच फंक्शन इज डिलीट डेटा। अभी डिलीट डेटा में हमने क्या किया है, रिमूव आइटम काउंट किया, तो बिकॉज ऑफ दिस काउंट विल गेट डिलीटेड, बिकॉज ऑफ दिस नेम विल ऑल्सो गेट डिलीटेड। बट अगर हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा तो सिर्फ क्या डिलीट होगा, तो सिर्फ क्या डिलीट होगा, काउंट डिलीट होगा, नेम वैसे ही रहेगा। अगर हमें दोनों डिलीट करना है तो हम ऐसे डिलीट करेंगे। अभी ये नहीं किया, सिर्फ नेम डिलीट किया,
तो काउंट वैसे ही रहेगा। बट अगर हमें दोनों डिलीट करना है तो वी नो कि उसमें काउंट है, नेम है, तो वो हमने रिमूव किया। आर यू विथ मी? हाउ वी हैव रिमूव्ड? So this is how you will have to write it on the page. So if you want to access the div, अभी ये जो मैसेज है वो हमें इधर दिखाना है, बराबर, डिव में दिखाना है इधर। तो पहले उसका कंट्रोल लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर एचटीएमएल, और उसमें हमने वैल्यू डाला। अभी अगर आपने देखा तो नाउ आई एम रिफ्रेशिंग द पेज एंड आई एम सेइंग रिमूव लोकल स्टोरेज। तो अभी लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं है, और यहाँ पे कुछ मैसेज भी दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे कुछ मैसेज दिख रहा है क्या? देखो नीचे बटन के नहीं दिख रहा है, बट वो बाद में आता है ना मैसेज। नाउ इफ यू गो टू एलिमेंट्स, तो ये जो हमारा डिव है उसमें कुछ डेटा दिख रहा है क्या? देखो इधर, ये जो हमारा डिव है इसमें डेटा दिख रहा है क्या? देखो कुछ नहीं है। बट वेन एवर आई एम क्लिकिंग ऑन एड टू लोकल स्टोरेज, तो इधर कुछ ऐड हो जाएगा, वो फंक्शन ऐड करता है। वो इनर एचटीएमएल इक्वल टू जो हमने लिखा है, तो इधर वो फंक्शन ऐड करेगा। कब करेगा? when I will click on add storage. So is it adding some text now here? Can you see? And if you expand it, is it adding the message that we are adding here? अभी वापस मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो पेज रिफ्रेश होता है तो कुछ नहीं है, देखो डिलीट के अंदर कुछ नहीं है, ब्लैंक है। बट द मोमेंट I say add local storage, so is it adding this message over here? And since it is getting added over here, it is getting displayed here. So अगर ये हमें इधर असाइन करना है तो कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया यहाँ पे असाइन करने के लिए? इनर एचटीएमएल। आर यू क्लियर? आर यू गेटिंग इट? और ये कहाँ से हो रहा है, उसके लिए हमने लाइन कौन सा लिखा है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिव, तो ये डिव का कंट्रोल लेगा, और उसके बिगिन और एंड टैग के बीच में, सो इनर एचटीएमएल वी हैव टू यूज दिस मैसेज। तो दिस मैसेज विल अपीयर in between your div tag. Now have you got the code for local storage, session storage? कोड समझ में आ गया? Any questions? Any questions? So over here we are using the local storage. अभी ये लोकल स्टोरेज में हमें चेक करना है कि स्टोरेज मतलब लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज ब्राउजर में सपोर्ट करते हैं क्या। तो अगर करते हैं तो ही ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा, राइट। एंड अगर हमें चेक करना है कि काउंट स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब पहली बार हम अगर आए हैं तो काउंट 1 करना है, दूसरी बार आए हैं तो एग्जिस्टिंग काउंट में 1 ऐड करना है। तो वी आर चेकिंग कि काउंट का की ये लोकल स्टोरेज में सेव किया है या नहीं किया है। एंड वंस वी गेट इट, अगर हमें डेटा ये वाले डिव में डिस्प्ले करना है, तो फिर हमने क्या लिखा इधर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई डिव। तो हमने ये वाला डिव का एक्सेस लिया, ये वाले डिव का एक्सेस लिया थ्रू जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम, और फिर उसके इनर एचटीएमएल में ये वाला मैसेज डिस्प्ले किया।
Are you with me, everybody? Now अभी यही कोड मैं कॉपी कर रही हूँ. यही कोड मैं कॉपी कर रही हूँ. And now here the same code. The same code I am pasting over here. और यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे? सेम कोड है. तो यहाँ पे सिर्फ अभी चेंज क्या करना है? सेशन स्टोरेज अगर हमने किया इधर, अगर इसको हमने चेंज कर दिया सेशन स्टोरेज को, तो क्या यूज होगा उसका? तो चेक वेदर सेशन स्टोरेज इज सपोर्टेड बाय ब्राउजर. यहाँ पे स्टोरेज ही लिखना है. फिर हमने वापस वही किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. फिर हमने यहाँ पे लिखा सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेशन स्टोरेज डॉट काउंट. और यहाँ पे भी क्या करना है? सेशन तो यहाँ पे भी क्या लिखना है? सेशन स्टोरेज काउंट इज इक्वल टू सेशन स्टोरेज प्लस 1, सेशन स्टोरेज काउंट इक्वल टू 1. और इधर हमने लिखा सेशन स्टोरेज डॉट काउंट टाइम्स. अभी वैसे ही ये रिमूव आइटम करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा? सेशन स्टोरेज यूज करना है तो सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज यूज करना है तो लोकल स्टोरेज. So if you use local storage and session storage, so this is how you can use it. So I'm saving the file. And now if I run it. Yes, Swapnil, we can use Control H for find and replace, but मुझे दिखाना था कि मैंने कहाँ changes किए, इसलिए I have used it in this way. Okay. Now here, if you check, अभी वापस F12 करते हैं. And in the application, can you see session storage now? Can you see session storage? Now if I am writing something here and now if I click on add session storage, अभी session storage में add हो रहा है, local storage में पुराना है. ओके, ये session storage में add हो रहा है. अभी यहाँ पे मैंने change कर दिया कुछ other value and if I click on add to session storage, so is it returning the value of count and ये override कर रहा है? और local storage में वही पुराना value है क्योंकि हम change नहीं कर रहे हैं अभी उसको. So this is how we are using it. So यहाँ पे अगर हमने यूजर वापस चेंज कर दिया और वापस सेशन स्टोरेज में ऐड सेशन स्टोरेज किया, so is it changing it? So yes. तो अभी ये लाइव सर्वर ने अपना खुद का सेशन स्टोरेज सेव किया है. हैव यू सीन? हम लाइव स्टोरेज, लाइव सर्वर यूज कर रहे हैं ना, तो उसने ये खुद का कुछ सेशन स्टोरेज में सेव किया है. सो इट इज ऑल्सो अपेयरिंग हियर.
Now, if I say display from session storage, is it showing me what is stored in the session storage? So yes, and if I click on removes from session storage, so is it deleting from session storage? But ये जो है वो हमने नहीं स्टोर किया है, ये किसने स्टोर किया है? ये जो हम गो लाइव सर्वर यूज कर रहे हैं उसका है। अभी वापस अगर हमने लिखा इधर यूजर वन, नहीं यूजर वन अगर हमने किया तो इज इट ओवरराइटिंग प्रीवियस नेम वैल्यू? क्योंकि की सेम है ना, एक ही की हम एक ही की पे हम एक ही वैल्यू दे सकते हैं, अलग अलग वैल्यू नहीं दे सकते। एंड हियर इट इज शोइंग मी वन टाइम। अभी वापस हमने यहाँ पे ऐड सेशन स्टोरेज किया तो काउंट 3 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ। अभी ये वैल्यू ब्राउजर विंडो बंद करने के बाद रिमेन रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस एंड आई एम रीरनिंग इट। So now if I rerun it, और यहाँ पे अगर F12 में हमने सेशन स्टोरेज देखा तो सेशन स्टोरेज में कुछ है क्या? देखो नहीं है। So are we losing data from session storage the moment we log out or the moment we close the window? तो yes, तो अभी ये आ गया। हेलो मैम। हम्म मैम जब हमने यूजर वन और यूजर टू ऐड किए ना, यूजर टू का जो डाटा है वो यूजर वन को रिप्लेस करेगा या फिर दोनों सेव रहेंगे? अभी यूजर वन हम नेम की में ही स्टोर कर रहे हैं ना, हाँ तो रिप्लेस हो जाएगा वो। बिल्कुल। अगर की अलग अलग किया तो दोनों रिप्लेस नहीं होगा। अलग अलग कैसे करेंगे मैम? हम तो एक ही स्टेटमेंट रन कर रहे हैं ना। बट अभी वो अलग अलग करने के लिए हमें की भी नया जनरेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा। लूप्स लिखना पड़ेगा क्या? लूप लिखना पड़ेगा या फिर कुछ लॉजिक जनरेट करके हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ये वैल्यू भी जनरेट हो। अभी हमने हार्ड कोडेड लिया है ना इधर, Yes. तो आप एक वेरिएबल ले सकते हो आई, फिर नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम 4 ऐसे कर सकते हो क्या? Yes. बट वो लॉजिक हमें लिखना पड़ेगा ना, डेवलपर को लिखना पड़ेगा लॉजिक। Yes, sir. राइट नाउ वी हैव गिवन हार्ड कोडेड की, तो वही की रिप्लेस होगी, तो पुराना वाला चला जाएगा, नया वाला आएगा। इधर भी हमारा पुराना काउंट चला जाता है ना, वो नया वाला ऐड हो, उस पे ही ओवरराइट हो रहा है, बराबर। बट अगर आपको ये वैल्यूज रिटेन करने हैं तो आपको इसके लिए लॉजिक बनाना पड़ेगा खुद को, अपने आप नहीं होगा। So this is how you will have to use local storage and session storage. So now everybody is clear with how to use session storage and local storage. So these are the facilities which are available in HTML5. अभी HTML का और एक facility रह गया है, that is geolocation, जो हम कल देखेंगे। आज हमने बहुत कुछ देखा है, फॉर्म्स देखा है, फॉर्म्स में बिल्ट इन वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं वो देखा है, फिर कैनवस कैसे यूज करते हैं, ऑडियो वीडियो कैसे यूज करते हैं, देन देन लोकेशन लोकल स्टोरेज एपीआईज कैसे यूज करते हैं। ये सारे किसके फैसिलिटीज है? HTML5 के फैसिलिटीज है। और ये कुछ फैसिलिटीज के लिए हमें थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है, उसको कोई चॉइस नहीं है। So now what we will do, now we are going to take lunch break. It is 1 o'clock. So we'll start at 2 o'clock. Meanwhile, I'll share all these demos on the drive. And in the lab book, lot of forms are also there for designing. So you can start working on labs at 2 o'clock. Is that okay? Fine. So see you at 2 o'clock.